Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, in the last lecture, we have discussed about algebra of limit of function. Okay. So, in the previous lecture, we have proved certain results. Suppose limit x tends to a, fx equal to L1, and limit x tends to a, gx equal to L2. See these. Look at this. In the last lecture, we have discussed these results. Limit of fx plus gx as x tends to a is equal to limit of fx plus limit of gx. Then if I replace addition by subtraction, then also result is true. Then if I replace addition by multiplication, then also result is true. That is fx into gx. Limit of fx into gx is equal to limit of fx into limit of gx. So this is the result. Then for division also we have proved the result. So this is for multiplication. In the multiplication theorem, we have used one fact that if limit of fx exists, then or limit of gx exists, then it is bounded in some deleted neighborhood of a. So this was the result that we have used in the last lecture. Limit x tends to a, gx exists, then g is bounded in some deleted neighborhood of point a. Therefore, there is some k and delta 1 greater than 0, so that this is true. Fine. Now, and then we have proved this also. Limit x tends to a, fx upon gx is equal to limit of fx upon limit of gx, provided limit of gx is non-zero and gx is not equal to 0 for all x. So these were the results that we have discussed in the last lecture. Okay, today we will see sandwich lemma or some other results. Okay, so now let's begin these results. So the first one is this. What does it tells us? Suppose limit x tends to a, fx equal to, let us say, L. Then so this is the statement. Suppose limit x tends to a, fx equal to L and k is any constant, then limit of k into fx is equal to k into L. This is the result that we want to prove. Okay, so let's first off let me write down the statement. Limit x tends to a equal to L, then prove that limit x tends to a,
k into fx is equal to k into L, that is k into limit x tends to a fx. Okay, we want to prove this. So let's see the proof. So we have given that limit x tends to a fx equal to L. What is my claim? And by the way, here k belongs to, k is any constant from R. So what is my claim? This is my claim, but I want to prove that, so wait for a few minutes. Okay, our claim is this: limit x tends to a k into fx is equal to k into L. Okay, so this is our claim. So there are two possibilities for k. Okay, if either k is 0 or k is non-zero. Okay, so suppose k is 0, then what is k into fx? 0. Yes, and what is k into L? Please tell me what is k into L? 0 था ना sir. So in this case, nothing, the result is obvious, I mean to say. Now I think you can see the screen. Okay, so what is my claim? So first of all, so this is my claim. Limit x tends to a k into fx equal to k into L. So if k equal to 0, then k into fx equal to 0, k into L equal to 0. Therefore, limit x tends to a k into fx is equal to 0, equal to k into L. So hence, let us assume that k is not equal to, so I want to show that limit of k into fx is equal to k into L. So from where I should begin? Epsilon greater than 0 sir. Yes. So let's consider epsilon. Fine. Now what should be our strategy? Now look at this. I want to show that this has limit L. So since I have taken epsilon positive, so I should estimate k into fx
minus k into L. Okay, so what is this value? Modulus of k into fx minus L. So now consider this difference, k into fx minus k into L. This is nothing but modulus of k fx minus L. Now I want this to be less than epsilon. Okay, I want this to be less than epsilon. So what should be epsilon for fx minus L? Abhay. Epsilon upon mod k. Yes, very good. Epsilon upon mod k. And why I can take epsilon by mod k? To take epsilon upon mod k, I should have k non-zero. Okay, but already we have assumed that k is non-zero. Clear? Since limit x tends to a fx equal to L. Okay, for epsilon by mod k greater than 0, there exists delta greater than 0 such that 0 less than mod of x minus a this is less than epsilon by mod k. Now let me say this to be 1, this to be 2. So for this epsilon I have found one delta so that this is 2. So now by 1, now for 0 less than mod x minus a less than delta, by 1, what is 1? K into fx minus k into L. Now this is less than, I will keep mod k as it is, but fx minus L is less than epsilon upon mod k. But whenever this is less than delta, but already I have taken 0 less than mod x minus less than delta, so I can take this to less than to be epsilon upon mod k. So mod k gets cancelled, so that I will get epsilon. Therefore, for every epsilon greater than 0, there is some delta greater than 0, such that this is less than delta. This implies that minus k into L less than epsilon. Therefore, limit k into fx. Okay. Now yesterday we have used the fact that if limit exists, then it is bounded in some deleted neighborhood of S. Now let me prove that lemma. Already we have used that lemma, and also I have given the proof, but let me give the proof again. If limit x tends to fx equal to L, or limit of fx x tends to fx exist, let me exist write down, then prove that f is bounded on some deleted neighborhood of A. So I have given that limit x tends to fx exist.
Let us take this limit equal to L. What is my claim? F is bounded in some deleted neighborhood of A. What does this mean? That is, what is deleted neighborhood of A? There exists some delta greater than 0 such that zero less than mod x minus A less than delta. If you take x in this interval, then fx is bounded, or there exists delta greater than 0, k greater than 0 such that modulus of fx is less than or equal to k within this interval. समझ में आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है सर। Fine. So now I want to prove the boundedness of function. तो आप एक चीज सोचिए, जब भी मैंने बाउंडेड वाले रिजल्ट्स प्रूव किए हैं ना, एप्सिलॉन ऑल द टाइम आई हैव टेकन व्हाट, आई हैव टेकन एप्सिलॉन. वैभव, what? Every Cauchy sequence is bounded, every convergent sequence is bounded. So in both the theorems I have used epsilon equal to 1. So now look at this. Since limit x tends to a, fx equal to L for epsilon equal to 1 greater than 0, there exists some delta greater than 0 such that 0 less than mod x minus a less than delta. This implies that mod of fx minus L less than epsilon. तो ये मैंने एप्सिलॉन इक्वल टू 1 क्यों लिया है भाई? एप्सिलॉन इक्वल टू 1 इसलिए लिया है कि आपको लिमिट इसकी L प्रूव नहीं करनी है. ऑलरेडी इट इज गिवन दैट लिमिट ऑफ fx इज L एंड वी वांट टू शो दैट f इज बाउंडेड. ठीक है, और बाय मेकिंग यूज, आई वांट टू शो दैट f इज बाउंडेड बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट. लेकिन लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन यूज करने के लिए मुझे एप्सिलॉन चाहिए. ये कैसी बात हुई है वैभव, पता है आपको? वैभव, हाँ सर। ये कैसी बात यहाँ पे है कि आपके पास ये मैं ये बोल रहा हूँ कि वाई कांट वी टेक एप्सिलॉन इटसेल्फ. एप्सिलॉन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको दिया होता तो आप ले सकते हैं ना. नहीं दिया है तो आप कौन सा पॉजिटिव, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉजिटिव नंबर, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 1 ही लेना है. अब भाई बोलेगा सर मुझे 1 लेने में प्रॉब्लम है, मैं 1 क्यों लूँ? तो मैंने सोचा भाई तुमको कौन सा पॉजिटिव नंबर अच्छा लगता है? तो वो बोलेगा सर 3 ले लो ना. तो मैंने बोला ठीक है भाई आप 3 ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सर्वोत्तम बोलेगा नहीं नहीं सर मैं 3 नहीं लूँगा, मुझे 3 नंबर से प्रॉब्लम है. तो मैंने बोला भाई तुमको कौन सा नंबर चाहिए? तो वो बोलेगा मुझे 7 लेना है. तो आप 7 भी ले सकते हैं एप्सिलॉन, लेकिन एप्सिलॉन नहीं ले सकते क्योंकि वी डोंट नो वेदर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 2 3. और ये कैसी बात है पता है वैभव आपको? मैंने आपको एक बार बताया था. हाँ सर। पता है ये कैसी बात है? आप इधर गए होते होंगे शाम का कैसे चाहिए ना? है, पता चल गया, समझ गए. 7 साढ़े 7 बज गए हैं, भूख लगी है, रेस्टोरेंट के सामने से आप निकले हैं, वहाँ से आपने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छा बन रहा है, पाव भाजी है और पंजाबी सब्जी भी मिल रही है, और पेट में तो बहुत भूख लगी है, आपको खाने की बहुत इच्छा हो रही है. लेकिन आपको पहले क्या चेक करना चाहिए? खाने रेस्टोरेंट में खाने जाने से पहले you should check your pocket. In pocket there should be sufficient money. समझ में आ रही है बात? वरना आप खाना तो खा लेंगे, बाद में दूसरा कुछ भी खाएंगे जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप समझ गए होंगे. क्या बोलते हो सर्वोत्तम? सही बात है सर, विटामिन एम तो चाहिए. तो ये एप्सिलॉन है ना,
ये है कि 1 पॉजिटिव नंबर है, ये लोग हम सभी लोग जानते हैं. So corresponding to 1 greater than 0, there is always some delta positive, so that this is true. Now this implies that ये भी हमें पता है कि मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एल दिस इज लेस देन 1. तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एल माइनस 1 लेस देन मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स लेस देन मॉड्यूलस ऑफ एल प्लस 1. तो ये देखिए यहाँ तो एक इंटरवल मिल गया, और यहाँ पे बाउंडेडनेस के लिए मुझे क्या लेना चाहिए. अब भाई मुझे दो चीज मिलनी चाहिए थी, एक तो डेल्टा, तो डेल्टा तो मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया, और दूसरी क्या चीज चाहिए थी अब भाई, k greater than 0. हाँ k ग्रेटर देन 0. तो मुझे k क्या लेना चाहिए, बोलो. टेक k इक्वल टू 1 प्लस मॉड l देन k ग्रेटर देन 0. Therefore आप देखिए there exists delta greater than 0, k greater than 0 such that 0 less than mod x minus a less than delta implies mod of fx less than k. तो ये मैंने प्रूव कर दिया, हो गया रिजल्ट. f is bounded in some deleted neighborhood of a. क्लियर, समझ में आ गया. हाँ सर आ गया. फाइन. तो बाद में हम देखते हैं कौन सा रिजल्ट है. यस ये है. ये क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स देन लिमिट ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव. ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है. सो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट. And fx greater than 0 for every x belongs to x. If limit x tends to a, fx equal to L, then prove that L greater than equals to 0. देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर फंक्शन आपका पॉजिटिव है पूरे डोमेन में, ठीक है, और उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि L भी L ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है फॉर एवरी पॉइंट x फ्रॉम डोमेन. मेरा क्लेम क्या है, व्हाट आई वांट टू शो, आई वांट टू शो दैट, एंड दूसरी चीज़ भी दी हुई है, लिमिट एग्जिस्ट हो रही है. भाई देखिए ये भी हो रहा है, ये दिया हुआ है. मुझे क्या बताना है, ये L है. ठीक है, ये क्या है, L है. ये क्या है, तो देखिए
लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल भी दिया हुआ है, और दिस इज माई क्लेम। एल को मुझे क्या बताना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करना। ठीक है, तो अगेन बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेट्स प्रूव। सपोज इफ पॉसिबल L less than 0. So therefore, what can you say about minus L? This implies that minus L by 2 is also positive. ठीक है, now limit x tends to a fx equal to L. Let me consider epsilon equal to minus mod L by minus L by 2 greater than 0. पैसे भी है और भूख भी लगी है, शाम का टाइम है, तो क्या मिलेगा आपको, खाना खाना मिलेगा, या खाने की चीज क्या है, डेल्टा है। ठीक है, therefore there exists delta greater than 0 such that 0 less than mod x minus a less than delta. This implies that modulus of fx minus L less than minus L by 2. ये मैं इंटरवल फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है भाई, L माइनस माइनस L by 2 लेस देन fx लेस देन L। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा भाई, बोलिए। L प्लस L by 2 कितना होता है, 3L by 2। ये fx एंड ये क्या हो जाएगा, L by 2। ठीक है भाई, तो देखिए, सो देयरफॉर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा x नॉट इक्वल टू a, दिस implies that 3L by 2 लेस देन fx लेस देन L by 2। पर L तो नेगेटिव नंबर है, देखिए, है ना। और यहाँ तो क्या, देयरफॉर fx इज नेगेटिव विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और यहाँ पे एक fx नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, therefore our assumption must be wrong. उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है भाई, बाद में ये देखते हैं रिजल्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। If f and g two functions from the same domain x to r and fx less than or equal to gx for every x belongs to x, then prove that limit x tends to a fx less than or equal to limit x tends to a gx। ठीक है, यह प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, ये fx less than or equal to gx है, तो मुझे उसकी लिमिट में ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं प्रूफ। तो देखिए, हम एज्यूम कर लेते हैं कि लिमिट ऑफ fx इक्वल टू l और लिमिट ऑफ gx इक्वल टू m। तो मुझे प्रूव क्या करना होगा, अगर पहले वाले की लिमिट l लेता हूँ और दूसरी वाले की लिमिट m लेता हूँ, तो मुझे क्या प्रूव करना है,
अब भाई L लेस देन और इक्वल टू M, ठीक है। यहाँ कॉरोलरी लिखने दो मुझे, rather than I should write in place of theorem, let me state this as corollary. देखिए, सपोज लिमिट x टेंड्स टू a, fx equal to L, limit x tends to a, gx equal to M. What is my claim? Limit of fx less than or equal to limit of gx, that is L less than or equal to M मुझे प्रूव करना है, ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं ये वाला रिजल्ट यूज करूंगा। ये क्या कहता है रिजल्ट कि अगर fx ग्रेटर देन 0, ठीक है फॉर ऑल x, तो लिमिट ऑफ fx इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए मुझे ये रिजल्ट यूज करना है, तो आपको एक फंक्शन चाहिए विच इज पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए मुझे L लेस देन और इक्वल टू M प्रूव करना है, तो मुझे क्या कंसिडर करना चाहिए, M माइनस L ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बताना चाहिए। तो M माइनस L क्या होगा, M माइनस L मीन्स लिमिट ऑफ gx माइनस fx, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड इन द अलजेब्रा ऑफ लिमिट दैट लिमिट ऑफ gx माइनस fx is equal to limit of gx minus limit of fx. Now I should concentrate on gx minus fx function. Now define. See. ठीक है। Now since now it is given that fx less than or equal to gx, तो अब क्या करेंगे भाई, ऐसा कुछ लाने के लिए what should I do to bring gx minus fx? मैं fx को राइट हैंड साइड पे ले लूंगा, तो प्लस से वो माइनस हो जाएगा। लेकिन ये है क्या, ये तो fx है। तो आपको क्या मिला, कैपिटल fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 for every x belongs to x. Therefore by previous result क्या कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं भाई लिमिट x टेंस टू a, कि कैपिटल x की लिमिट भी क्या होगी कि भाई वो भी पॉजिटिव होगी। तो ये नया फंक्शन fx आ गया है, मेरे पास तो था नहीं, ठीक है। तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा। ये कैसा है कि भाई अभय है, उसने 10 लाख रुपये सर्वोत्तम से लिए हैं, तो क्या है कि उसको लौटाने तो पड़ेंगे ही, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात है, ये था नहीं तो ये आ गया है, तो मुझे उसे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, gx माइनस fx, ये हो गया। लेकिन इन द अलजेब्रा ऑफ लिमिट वी हैव प्रूव्ड दैट नाउ ब्रिंग दिस ऑन, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए। बाद में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो सैंडविच थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो ये पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, ये खाने की सैंडविच नहीं है भाई, तो मेहरबानी करके
ये मत सोचिएगा कि यार सैंडविच ने कहाँ से ला दी बीच में। भाई ये खाने की सैंडविच की बात नहीं है, ये एक थ्योरम है जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं क्या कहता है सैंडविच थ्योरम। आपको एक बार तो आ गया है, किस में आया है अब भाई? सीरीज में, सीक्वेंस सीरीज। सीरीज तो हमने पढ़ी ही नहीं है, सीरीज कहाँ से आ गई भाई? सीक्वेंस सीक्वेंस। हाँ, सीरीज तो अभी मैंने सुना ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं है। ऐसा भारी भारी शब्द बोल के मैं घबरा जाता हूँ, ऐसा मत बोलना प्लीज। मुझे डर लग जाता है कि यार ये सीरीज कहाँ से आ गई। सपोज fx लेस देन और इक्वल टू hx लेस देन और इक्वल टू gx, ये सैंडविच हो गया hx बिकम सैंडविच बिटवीन fx एंड gx। तो ये दोनों ब्रेड है fx एंड gx, और ये बीच वाला क्या है? सैंडविच में क्या आता है बीच में? वही ये hx है। तो पूरी के पूरा क्या हो जाएगा? लिमिट। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना होगा? देखिए पहले वाली और लास्ट वाले की लिमिट सेम है, तो बीच वाले की भी लिमिट क्या होगी? प्रूव दैट ठीक है। तो ये है प्रूव करना। तो आपको प्रूव क्या करना है? लिमिट ऑफ hx को क्या बताना है? l प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। सो इट इज गिवन दैट f, g and h they are function from x to r, fx less than or equal to hx less than or equal to gx for every x belongs to x। तो दूसरी चीज ये दी हुई है लिमिट x tends to a gx। what is our claim? लिमिट x tends to a, hx की लिमिट मुझे क्या प्रूव करनी है भाई? मुझे l प्रूव करनी है। तो ये l प्रूव करने के लिए मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? बोलिए भाई। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से। yes, so let's consider epsilon greater than 0। ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन है और लिमिट ऑफ fx क्या दी हुई है? l है, लिमिट x टेंस टू a, gx की भी लिमिट क्या है? l है। तो क्या मूल्य मुझे मिलेगा? there exist two positive integers delta 1 delta 2 greater than 0 such that 0 less than mod of x minus a less than delta implies fx minus l less than epsilon। ठीक है। और दूसरी चीज मुझे क्या मिलेगी? mod x माइनस ए लेस देन डेल्टा 2, ये क्या है? जी एक्स माइनस एल, ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ तो दो मिले, मुझे तो एक ही डेल्टा फाइंड करना था एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ तो आपको दो मिले, तो क्या चूज करना चाहिए? देखिए ये क्या कह रहा है, ये दोनों ट्रू है जब x इंटरवल में है तब। तो व्हाट शुड आई चूज? डेल्टा। बोलिए। मैक्स ऑफ मिनिमम। नहीं, मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2।
Then what is the relation between delta and delta 1? ठीक है, तो ये देखिए, उसका मतलब क्या हुआ? Therefore, for 0 less than mod of x minus a less than delta implies 0 less than mod x minus a less than delta 1, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन जी एक्स माइनस एल, ये उसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन less than gx less than L plus epsilon. Now let me say this to be 1, ठीक है। तो ये देखिए उसमें क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना है? लिमिट ऑफ एच एक्स इज एल। तो नाउ लेट्स कंसिडर दिस इंटरवल फॉर 0 less than mod x minus a less than delta. I want to show that L minus epsilon less than hx less than L plus epsilon, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखिए L माइनस एप्सिलॉन विच इज लेस देन एफ एक्स, ये तो है बाय 1, एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या है? एच एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या है? जी एक्स। लेकिन जी एक्स लेस देन क्या है? एल प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे? एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स। ये तो पूरे डोमेन में है, तो इन पर्टिकुलरली इन पॉइंट्स में भी ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी। एंड बाय for every x belongs to x and by 1, ठीक है। now let me put this and this together. तो मुझे क्या मिला? ये लेस देन डेल्टा है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ एच एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, therefore for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, such that 0 less than mod x minus a less than delta implies modulus of hx minus l less than epsilon, or you can say that limit x tends to a hx इक्वल टू एल। तो ये था सैंडविच थ्योरम, ठीक है। तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है। बाद में जो थ्योरम है वो देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहता है? देखिए ये स्टेटमेंट, रिलेशन बिटवीन लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ये है। So let me consider function f be given function
ये दिया हुआ है, प्रूव दैट, दूसरी चीज ए है, ए बिलोंग्स टू एक्स, प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स equal to L if and only if every sequence xn in X is xn not equal to A for every n in n, xn tends to A implies fxn tends to L. L क्या है यहाँ पे? लिमिट है as n tends to infinity. ये देखिए स्टेटमेंट बहुत ही समझिए आप पहले तो क्या मतलब निकलता है इसका। यहाँ पे मुझे फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंस टू ये एफ एक्स इक्वल टू एल, ये मैं एज्यूम करता हूँ तो मुझे प्रूव क्या करना होगा कि कोई भी सीक्वेंस लीजिए आप, कहाँ से, डोमेन में से, विच कॉन्वर्स टू पॉइंट x, पॉइंट a, ठीक है, आपको एफ एक्स एन सीक्वेंस मिलती है। ये देखिए पॉइंट a है, अब कोई भी सीक्वेंस यहाँ से लीजिए x1 x2 x3 विच कॉन्वर्स टू पॉइंट a, अगर आप एफ एक्स एन फाइंड करेंगे तो ये यहाँ पे आएगी सीक्वेंस, ठीक है। तो एफ एक्स एन जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? दिस टेंस टू एल इफ एफ एक्स एन टेंस टू ए, और कॉन्वर्सली इफ यू प्रूव दिस और इफ यू एज्यूम दिस फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स फॉर विच एक्स एन इज नॉट इक्वल टू ए एंड एक्स एन टेंस टू ए implies fxn tends to L, then limit x tends to a fx equal to the limit of this sequence fxn. See, राइट हैंड पे जो है ये स्टेटमेंट है ना, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस पे है, देखिए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस है, यहाँ पे कहीं पे लिमिट ऑफ फंक्शन की बात नहीं है, और यहाँ पे देखिए कहाँ है, कहीं पे भी लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात नहीं है। तो आपको ये चीज़ पता यहाँ से चलती है कि दोनों की दोनों चीज़ सेम लगती है। यहाँ से देखिए लिमिट ऑफ सीक्वेंस से भी ये कंसेप्ट आप डिफाइन कर सकते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। सो ऐसा एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन से हमने डिफाइन की है लिमिट, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन से ही लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। सो देयर आर मैनी ऑथर्स कि जो ये डेफिनेशन लेके चलते हैं लिमिट वाली, ठीक है। आप कब बोलेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एल, ये कब बोलेंगे तो ये ले लेते हो, every sequence xn in x, xn tends to a implies fxn tends to l, then you can say that limit of fx is equal to l. तो कुमरेसन सर ने जो बुक लिखी है रियल एनालिसिस की, ठीक है, बेसिक कोर्स इन रियल एनालिसिस, इसमें ये दे हैव एक्सेप्टेड दिस एज डेफिनेशन, कुमरेसन सर और रजित कुमार ने ये डेफिनेशन लेके चले और बाद में सारे रिजल्ट्स डिराइव किए हैं, एग्जांपल्स भी इन्हीं से बताए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन ही लेनी चाहिए आपको। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, ऐसा है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, समझ में आ रहा है? हाँ सर। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, ऐसा है। तो हम ये प्रूफ देखते हैं। सो वी हैव गिवन दैट f is a mapping from x to r, a belongs to x, ठीक है। तो पहले हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fx equal to L. What should be our claim? Every sequence xn in A
not a, x, or xn is not equal to and xn tends to a. This implies that fxn tends to l. l कहाँ से आया भाई? l दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? आई वॉन्ट टू प्रूव दिस इम्प्लीकेशन। बोलिए अभय। हाँ सर। कहाँ से मुझे शुरुआत करनी चाहिए? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। नो, एप्सिलॉन तो कब, जब आपको लिमिट फाइंड करनी हो, बतानी हो, तब लेना चाहिए। यहाँ तो लिमिट, यहाँ तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है पूरा का पूरा। सीक्वेंस एक्शन डिफाइन करनी। यस, आपको ये बताना है कि कोई भी सीक्वेंस एक्सन इन एक्स के लिए ये इम्प्लीकेशन आपको बताना है। तो आपको क्या लेना होगा? लेट एक्सन बी एनी सीक्वेंस इन एक्स सो दैट एक्सन इज नॉट इक्वल टू ए फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन एंड एक्सन टेंड्स टू ए। और आपको क्या प्रूव करना है? एफ एक्स एन सीक्वेंस जो मिल रही है वो उसकी लिमिट क्या बतानी है आपको? एल। सो लेट एक्सन बी एनी सीक्वेंस in x, xn not equal to a and xn tends to a as n tends to infinity. What is our claim? वैभव, हमें क्या प्रूव करना है? fxn की लिमिट एल बतानी है। यस, वेरी गुड। fxn tends to l as n tends to infinity। तो ये मुझे प्रूव करना है, तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी होगी? एप्सिलॉन से। यस, और मुझे क्या ढूंढना होगा? डेल्टा? नहीं सर, इसमें डेल्टा नहीं आएगा ना। हाँ, वेरी गुड। क्या आएगा इसमें? इसमें तो हम एप्सिलॉन ही लेते हैं ना। हाँ, एप्सिलॉन लेते हैं, लेकिन ढूंढना क्या है? आपको खाना खाने हैं तो आपके पास पैसे होना चाहिए, तो आपने खाने की n0। यस, n0। आप कुछ भी खा लेंगे, जो भी मिलेगा आपको। सपोज मान लीजिए कि पाव भाजी अच्छी लगती है, तो आप पाव भाजी के पैसे है तो आप वही खाएंगे ना, अच्छी बनाते होगे तो। ऐसा है, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। आपको क्या निकालना है? आई वॉन्ट टू प्रूव दिस। तो आपको क्या फाइंड करना होगा? देयर एग्जिस्ट सम n0 इन n such that for all n greater than equals to n0 आपको क्या बताना होगा? fxn माइनस l लेस देन क्या बताना होगा? समझ में आ रहा है? ये क्लेम है। क्लियर वैभव? हाँ सर। ठीक है, फाइन। तो देखिए, अभी एप्सिलॉन है और मुझे दिया हुआ है क्या? देखिए, एप्सिलॉन मैंने पॉजिटिव लिया है, तो देखिए मुझे ये दिया हुआ है लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एल। तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? n0 मिलेगा यहाँ से। क्या मिलेगा? हाँ क्या मिलेगा? बोलिए। अभय, हाँ सर। यहाँ पे क्या मिलेगा? n0 इन n। n0 कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पे सीक्वेंस कहीं पे दिख रही है? n टेंस टू नहीं इन्फिनिटी है भाई, देखो। नहीं नहीं। तो क्या मिलेगा?
आपने गांधीनगर की बस नवसारी से ली होगी तो आप बॉम्बे पहुंच जाएंगे कि गांधीनगर ही पहुंचेंगे? गांधीनगर ही पहुंचेंगे। हाँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? डेल्टा ग्रेटर देन 0। हाँ, इसको मैं 1 बोलता हूँ। तो आपको यहाँ से क्या मिला देखिए, डेल्टा पॉजिटिव मिला ना? हाँ सर। डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड एक्स एन टेंस टू ए, ली है ना सीक्वेंस, ये तो हमने ली है, लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस दैट एक्स एन टेंस टू। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा अब बताओ वैभव? हाँ सर। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे इस पॉजिटिव नंबर के लिए? एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। नो, ये पॉजिटिव, थिंक दिस एज एप्सिलॉन नाउ, फॉरगेट अबाउट डेल्टा, जस्ट थिंक दिस इज, मान लीजिए कि ये एप्सिलॉन है नहीं, लेकिन मान लीजिए, ठीक है? मानने में क्या आपकी नुकसान है भाई, ठीक है? तो और एक्स एन की लिमिट ए है, एक्स एन क्या है तो कि सीक्वेंस की लिमिट ए है, तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा मिलेगा। एन नॉट मिलेगा। हम्म, ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर आई। और दूसरी बात, यहाँ पे एक्स एन नॉट इक्वल टू ए है, ठीक है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम नहीं हो गए इसलिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है? नाउ लेट मी से दिस टू बी 2। ये 1 क्या कहता है, जब ये डेल्टा से कम है ये डिफरेंस x माइनस ए का, तो एफ एक्स माइनस एल का डिफरेंस यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है? वेन एवर एक्स एन माइनस ए इज लेस देन डेल्टा बाई 1, व्हाट कैन यू से? एफ एक्स एन माइनस एल लेस देन क्या होगा, बोलिए? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए, अब ये तो मुझे चाहिए था ना ऐसा ही कुछ, देखिए, there exists n0 in n, so there exists n0 in n such that whenever n greater than equals to n0, whenever n greater than equals to n0, fxn minus l less than, यही नहीं चाहिए था ना यही? अब भाई हाँ सर। आपको मैं दूसरी बात यहाँ पे आपको बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन लिया तो आपके मगज में यही था कि सर डायरेक्टली यही यूज़ करेंगे, एक्स एन टेंस टू ये है ना, तो डायरेक्ट n0 यहाँ से ले लेंगे सर। तो यहाँ से भी मैं ऐसे भी लिख सकता था एक्स एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0, क्योंकि इसकी लिमिट ऑलरेडी ए है, ठीक है? लेकिन उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? देखिए, मैंने वो ले लिया होता तो मुझे जो प्रूव करना था वो मैं नहीं ला सकता है। समझ में आई बात वैभव? हाँ सर। हाँ सर आई। आपके पास सफिशेंट पैसे है तो आपको क्या, आप क्या खाना खाएंगे जो आपको आपके बॉडी के लिए अच्छा है और आपको टेस्ट में भी अच्छा लगता है, ऐसा ही लेंगे ना आप? हाँ सर। हाँ, ऐसी कुछ बात है यहाँ पे, ठीक है? तो नाउ कॉन्वर्सली अस्यूम दैट और बाय द वे मुझे ये फिनिश करने दो, देयरफॉर ये लास्ट लाइन लिख देता हूँ, देयरफॉर for every epsilon greater than 0 there exists some n0 in n such that for all n greater than equals to n0 और आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
एफ एक्स एन इक्वल टू एल, यही आपको प्रूव करना था। अब हम कॉन्वर्स पार्ट एज्यूम करते हैं। कॉन्वर्सली एज्यूम दैट फॉर एवरी सीक्वेंस xn in x, xn not equal to a for all n in n, xn tends to a implies fxn tends to l। ये हमने assume किया है, देखिए ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि लिमिट x टेंस टू ये fx इक्वल टू l। सो दिस इज माय क्लेम। ठीक है, ये मुझे बताना है, तो मुझे बोलिए। शुरुआत आप ऐसे बोलेंगे सर एप्सिलॉन से करिए, लेकिन ये मुझे प्रूव करना है तो एप्सिलॉन से मैं करूँगा ना तो उसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। दैट इज़, देखिए ये मुझे प्रूव करना है, उसका मतलब क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x belongs to a minus delta to a plus delta, x not equal to a fx minus l, और fx belongs to l minus epsilon to l plus epsilon। ये 1 2 और 3, 1 2 3 समझ में आया। ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर कोई भी एप्सिलॉन ले उसके लिए एक डेल्टा मिलना चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो अभी हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। सपोज इफ पॉसिबल लिमिट x टेंस टू a fx इज नॉट इक्वल टू l। उसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर विच, और उसका मतलब क्या, देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 x belongs to a minus delta to a plus delta, fx does not belongs to l minus epsilon to l plus epsilon. This means that there doesn't exist और इसका क्या हो जाएगा, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 x belongs to fx does not belongs to l minus epsilon to l plus epsilon। ठीक है, दैट इज, मैं ये लिख देता हूँ, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये ऐसा एप्सिलॉन नहीं मिलेगा, ये ट्रू है, यहाँ बिलोंग्स टू लिखना चाहिए, नॉट। कैसा एप्सिलॉन नहीं मिलेगा कि there doesn't exist any epsilon greater than 0 so that for all delta greater than 0 x belongs to this implies fx belongs to this। ठीक है, उसका मतलब क्या, for all delta greater than 0 there is some epsilon greater than 0 such that whenever x belongs to a minus delta to a plus delta, x not equal to a implies fx does not belongs to l माइनस एप्सिलॉन टू l। एक ऐसा एप्सिलॉन जरूर मिलेगा कि fx इनमें नहीं आएगा। दैट इज, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन, फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 0 लेस देन मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज, आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू और fx माइनस l,
दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। समझ में आई? ये नेगेट किया है मैंने स्टेटमेंट को पूरा। अभय हाँ सर। ठीक है, इसे इजी वे में कभी नेगेट नहीं हो सकता। मैंने सारे स्टेप लिखे देखिए वन बाय वन। ठीक है, तो देखिए दिस मीन्स दैट फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 ये यहाँ पे फॉर ऑल एक्स था ना, तो यहाँ देयर एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिलता है। ठीक है, फाइन। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये कोई भी डेल्टा के लिए कोई पॉइंट एक्स मिलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन एंड देयर एग्जिस्ट हियर, आई शुड ऑल्सो राइट हियर वन मोर टर्म। such that this happen। ओके, तो मैं डेल्टा अभी ये उसको मैं वन बोलता हूँ। ठीक है, सो टेकिंग डेल्टा इक्वल टू 1 बाय n, then delta is greater than 0, clear, for n belongs to n, then by 1 there exists xn in x such that whenever xn minus a less than 1 by n, this implies that fxn minus l greater than or equal to एप्सिलॉन। बट लिख देता हूँ। ठीक है, so we get a sequence xn in x such that xn not equal to a and 0 less than mod of xn minus a less than 1 by n for all n in n। ठीक है, by taking limit as n tends to infinity, we get 0 है तो 0 की लिमिट तो 0 ही होगी, 1/n की लिमिट क्या है, 0। तो बाय सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंस, स्क्वीजी थ्योरम, दिस इज आल्सो नोन एज स्क्वीजी थ्योरम, उसको स्क्वीजी थ्योरम भी बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस ए की लिमिट क्या होगी, 0। मॉड्यूलस की लिमिट 0 है तो हम विदाउट मॉड्यूलस की भी लिमिट क्या लिख सकते हैं, नाउ ब्रिंग ए ऑन राइट साइड। ठीक है, सो बट ये हुआ xn की लिमिट क्या मिली मुझे, a, बट मॉड्यूलस ऑफ fxn माइनस l दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा कि ये कोई भी एन नॉट के लिए दिस कैन नेवर बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन। व्हाट डज दिस मीन, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन इन एन। दिस मीन्स दैट
fxn cannot converge to l as n tends to infinity. fxn tends to l के लिए क्या होना चाहिए? fxn minus l, that should be less than epsilon after some stage. So this is a contradiction. ठीक है, इसका क्या मतलब निकलता है कि our assumption must be wrong. So hence limit x tends to a fx equal to l is true. तो ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया रिजल्ट. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. दिस इज रिलेशन बिटवीन लिमिट ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस. दोनों चीज के बीच का ये रिलेशन है. ठीक है, so we stop our discussion. Next time we will see some examples and new results. Okay, समझ में आ रहा है एनालिसिस? हाँ सर. तो अच्छी बात है. So fine, so goodbye. गुड बाय सर.